ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे लॉगरिथम का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 97 तक क्वेश्चंस है। आई होप आपने ट्राई किया है खुद से, सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स रिवाइज एवरीथिंग वंस। जो जो प्रॉपर्टीज हमने देखे एवरीथिंग लेट्स रिवाइज। ओके, सो first of all we saw log is just opposite of indices. If a raised to b is equal to c, then we can say that b is equal to log of c to the base a, right? Or if we have let's say log of a to the base b is equal to c, then we can rearrange it to get b raised to c is equal to a. Then we saw in a log, if base is not written, then it is assumed as 10. Okay, 10 को बोलते हैं common base, so 10 is common base. Then log of 1 is 0 because anything raised to 0 is 1. Log of 0 is not defined because किसी को भी किसी नंबर से रेज करते तो 0 नहीं आ सकता किसी भी पॉजिटिव नंबर को. Log of anything to base 1 is also not defined because 1 को किसी से भी रेज करो 1 ही आएगा, no other number can be the answer, right? Log of anything to base 0 is also not defined because 0 को भी पावर्स नहीं ले सकते हम. Log a to the base a is 1. Log of negative number is not defined. तीन मेन प्रॉपर्टीज बेसिक. Log of a plus log of b is equal to log of ab, a into b. Next, log of a minus log of b is equal to log of a by b. Then next, log of a raised to b, we can take this power down, we can pull down the power, so it becomes b log a, right? Then change of base property was what? If we have log a to base b and we don't want base b, we want some other base, then we can write it as log a upon log b with any base that we want. Base can be c, z, x, y, 10, e, whatever. Then because of this change of base, we saw that log a to base b into log b to base a is 1, right? It gets cancelled. Then we saw natural base, मतलब क्या? Natural base is e, Euler's number. We'll deal with this number more when we go to derivatives integration, calculus wala part, and also in the chapter of theoretical distributions. And one more property that we saw was a raised to log of b to the base a is b. कहीं पर आया तो you should be able to identify. Based on these properties, we have solved the exercise. Now let's go to additional question bank. Now out of all the additional question banks of the module में जो additional question banks है उसमें से indices and logarithm का comparatively ज़्यादा difficult है. Okay, as compared to other question banks, indices and logarithm का is relatively more difficult. तो देखते हैं कैसे solve करना है and especially 1 मिनट में कैसे आंसर आ सकता है. Okay, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस लगते हैं कुछ, तो इतना टाइम तो नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में सॉल्व करने को. सो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं हम. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 61. कुछ क्वेश्चंस तो कुछ भी है, मतलब लाइक दिस क्वेश्चन 61. क्वेश्चन 61, log of 1 plus 2 plus 3 is exactly equal to, अब 1 plus 2 plus 3 कितना था? 6, राइट? एंड 1 into 2 into 3 भी 6 आता है, देखो, राइट? तो log 6 और ये log 6 मतलब ये तो है, लेकिन बोथ द अबव ऑप्शन दिया तो ऑप्शन ए भी चेक करता है. मुझे बोलो इसको ही स्प्लिट किया तो ऑप्शन ए मिलेगा क्या? ऑप्शन बी को स्प्लिट किया तो log ऑफ a into b पता है हमें, log a plus log b होता है, तो log 1 plus log 2 plus log 3 हो जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों सेम ही ऑप्शंस. तो बोथ द अबव शुड बी आवर आंसर, a and b. ओके, 62, log of 21,952 to the base 2 root 7 and 19,683 to the base 3 root 3 r. सॉल्व करते नहीं बैठना है, इंडाइसेस लेके पावर लेके देखना है फास्ट कैलकुलेटर पे. क्या पूछा है? log of 21,952 to the base 2 raised to 7, मतलब 2 raised to 7 raised to what? sorry 2 root 7.
21,952 to the base 2 root 7. So 2 root 7 raised to what is 21,952. Calculator लो, 2 root 7 करो, 2 into root 7, 5.2915 आएगा देखो, 2 into 7 का रूट. उसको रेज करते रहो, हमने देखा है ऑलरेडी. रेज कैसे करते रहना है उसको, एक बार इनटू, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, जब तक ये नंबर नहीं आता. करो, काउंट भी करो कितने बार इक्वल टू प्रेस कर रहे हो आप. 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है, इसका मतलब ये आंसर है 6. राइट. दूसरा वाला करते हैं 3 रूट 3. 3 रूट 3 को रेज करते रहो, 3 इंटू रूट 3 कितना आता है, 3 इंटू 3 का रूट 5.1961 आया देखो. उसको रेज करते रहो जब तक 19,683 नहीं आता. लेट्स ट्राई इनटू 1 2 3 4 5. 5 टाइम्स करने पर ही आ रहा है, मतलब वो भी 6 ही है. तो दोनों 6 है, मतलब दे आर इक्वल. ओके, कैलकुलेटर पे करना है, फास्टेस्ट वे सोचना है हमें, इंडाइसेस वगैरह पे नहीं जाना है, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास ना. चलो, वैल्यू ऑफ ये इज बाद में चाहिए था, अच्छा इज नहीं चाहिए था. 4 log 8 by 25 minus 3 log 16 by 125 minus log 5. अब इसको फास्ट रीअरेंज करते हैं. चलो, 4 log 8 by 25, 4 को ऊपर लेते हैं यहाँ पे, तो वो आ जाएगा log of 8 by 25 raised to 4 minus log of 16 by 125 raised to 3 minus log of 5. चलो, log of a minus log b, हमें पता है log a minus log b is what, log a upon b, मतलब ऐसा हो जाएगा log of 8 raised to 4 upon 25 raised to 4. हाँ, ये दोनों को दे देते हैं पावर, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ये. अब उससे डिवाइड करना है, मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं हम, 125 क्यूब अपॉन 16 क्यूब. राइट. देखो, इससे डिवाइड करना है, इसका मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है हमें. एंड ये 5, ये भी डिवीजन में ही आने वाला है क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो नीचे लेते हैं 5 को. देखते हैं कैंसिल कैसे होता है. कैंसिल इट, ट्राई टू कैंसिल इट. क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 8 is 2 क्यूब, 2 raised to 3 raised to 4, मतलब 2 raised to 12 into 125 is 5 का क्यूब, तो 5 raised to 3 raised to 3 मतलब 5 raised to 9 upon 25 is again 5 square, तो 5 raised to 2 into 4 मतलब 5 raised to 8 into 16 क्यूब मतलब 2 raised to 4 raised to 3, 2 raised to 12 into 5. देखो 2 12 कैंसिल होता है, 5 raised to 9 के साथ ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाता है, तो log 1 बचता है. log 1 is how much, log 1 is 0. समझा है. नाउ टेल मी, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, राइट. एग्जाम में मतलब है, ठीक है, ये भी क्या तो चलेगा, एक मिनट में हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं उसको. कैसे कर सकते हैं देखो, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस. चलेगा ऐसा क्या, तो भी नो इश्यूज, एक मिनट में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट थोड़ा और फास्ट करने का ट्राई कर सकते हैं उसको. क्या कर सकते हैं हम, देखो 8 by 25 को पॉइंट में लेके आओ. व्हाट इज 8 by 25 कैलकुलेटर पे, 0.32. देखो 8 डिवाइड बाय 25 करके देखो, 0.32. 16 by 125 को भी लेके आओ, 0.128 आता है वो, 128, सॉरी नॉट 125, एंड माइनस log 5. मतलब हमें ऐसे करना है क्या, देखो इन अदर वर्ड्स log ऑफ 0.32 raised to 4 माइनस log ऑफ 0.128 का क्यूब माइनस log ऑफ 5. ठीक है, मतलब हमें ऐसे करना है इन अदर वर्ड्स log ऑफ 0.32 raised to 4 अपॉन 0.128 का क्यूब, और 5 भी नीचे ही आएगा डिवीजन में, माइनस है ना साइन, तो भी कैलकुलेटर पे करना इजी होगा ना ज्यादा. देखो 0.32 raised to 4 करो, कैसे करोगे, 0.32 इंटू 3 बार इक्वल टू जो कुछ आया होगा डिवाइडेड बाय 0.128 का क्यूब से कैसे डिवाइड करेंगे हम, 0.128 से डिवाइड करो और 3 बार इक्वल टू दबाओ, 1 2 3, तो 5 बचेगा, देखो 5, एंड देन डिवाइड बाय 5, तो 1 ही आएगा आंसर. 1 आंसर डायरेक्टली आ सकता है इससे. अब वैसे तो आपको ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं होगी ना, सोच के अगर कर सकते हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेप एंड गेट आंसर विद इन 10 सेकेंड्स. वापस एक बार बोलता हूं चाहिए तो,
0.32 रेस टू 4 करो पहले, 0.32 रेस टू 4 इंटू एंड 3 बार इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाय 0.128 से 3 बार डिवाइड करना है, क्यूब है ना, तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 0.128 एंड 3 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, 1 2 3, एंड ये 5 से भी डिवाइड ही करना है हमें, नीचे है क्योंकि वो, सो डिवाइड बाय 5, तो 1 आता है आंसर, तो log 1 इज 0। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन 64। अब 64 को भी एक लेंदी वे है लेकिन एक बहुत शॉर्टकट वे है, ओके, लेंदी वे बोलता हूं आपको ऐसे ही, एक थोड़ा शॉर्टकट वे भी है, जो आपको ठीक लगे यू कैन यूज इट। a रेस टू वो log b माइनस log c इंटू b रेस टू log c माइनस log a हैज अ वैल्यू ऑफ, उन्होंने वैल्यू पूछा है उसका, व्हाट कैन वी डू, log b माइनस log c को मे बी log b बाय c ले सकते हैं, लेकिन उससे भी फायदा नहीं होगा क्योंकि देखो ये बेसिस तो अलग अलग है ना, ठीक है, मे बी हम ऐसा कर सकते हैं, देखो मे बी वो जो पावर्स है अगर वो नीचे आ गए, पावर्स नीचे आ गए तो हमें फायदा हो सकता है, पावर्स नीचे आने चाहिए तो हमारे पास लॉगरिथम का रूल होता है, तो एक काम करते हैं, ये जो सब है इसको x अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम दिस एज x, एंड दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड का लॉग लिया तो क्या होगा, देखो लॉग ऑफ वो a रेस टू log b माइनस log c इंटू b रेस टू log c माइनस log a एंड वो जो कुछ है इज इक्वल टू log x आएगा यहाँ पे, फाइन। फिर ये a वाला टर्म, b वाला टर्म और c वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनको स्प्लिट करके ऐड कर सकते हैं लॉग्स को अलग अलग से, तो ऐसे हो जाएगा, देखो log ऑफ a रेस टू log b माइनस log c प्लस log ऑफ b रेस टू log c माइनस log a माइनस log a प्लस log ऑफ c रेस टू log a माइनस log b इज इक्वल टू log x, वो तो है ही राइट हैंड साइड को, ठीक है। अब हमें पावर पुल डाउन करने की प्रॉपर्टी पता है, तो ये पावर्स को पुल डाउन करते हैं यहाँ पे, सभी पावर्स को, तो ऐसे हो जाएगा log b माइनस log c इंटू log a प्लस log c माइनस log a इंटू log b प्लस log a माइनस log b इंटू log c इज इक्वल टू log x। मुझे बोलो इतना टाइम है क्या हमारे पास एग्जाम में, अब वो ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, अब ओपन करने के बाद वो एक्चुअली इजी है क्योंकि वो सब कैंसिल होने वाला है, सब कैंसिल होने वाला है, देखो log b इंटू log a आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे log b इंटू log a निगेटिव आएगा तो वो चला जाएगा, log c इंटू log a निगेटिव आएगा, यहाँ पे log c इंटू log a पॉजिटिव आएगा वो चला जाएगा, log c इंटू log b पॉजिटिव आया, log c इंटू log b निगेटिव आया वो भी चला गया, तो जीरो बचने वाला है LHS पे, तो इट इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू log x। और हमें पता है कौन से नंबर का log 0 होता है, विच नंबर्स log is 0, 1 का log 0 होता है ना, इसका मतलब x is 1, ओके, सो दिस इज अ गुड वे, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में, राइट, तो कोई तो और करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट आंसर कैसे आता है ये सोचना है हमें, 1 मिनट के अंदर, राइट, 1.2 मिनट्स काउंट ही मत करो आप, उसमें से थोड़ा टाइम जाता ही है एग्जाम में 100%, तो ये समझ लो पहले, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, विल नॉट डू दिस, कि कोई तो अच्छा वे देखता है, सी हमें प्रूफ नहीं करना है इट इज करेक्ट, और हमें कहीं पे वर्किंग नहीं दिखाना है, तो हम शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, फिर कैसे शॉर्टकट्स, लेट्स सी। अब एक काम करते हैं, ए बी एंड सी के वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं कुछ, तो क्योंकि देखो अगर ये 1 आता है तो ए बी सी के कौन से भी वैल्यू के लिए वो 1 ही आना चाहिए आइडियली, देन राइट, कौन सा भी वैल्यू मतलब सिर्फ पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि वहां पे लॉग्स है, ठीक है। अब कौन सा भी वैल्यू मतलब हम कुछ भी लिया अगर हमने, तो हमें ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो अगर ए बी सी को 2 3 4 अज्यूम किया सपोज हमने, तो वो प्रॉब्लम आएगा हमें, क्यों आएगा, क्योंकि log 2 log 3 log 4 पता नहीं हमें, राइट। कैन वी अज्यूम ए बी सी एज 10 100 एंड 1000, क्यों, क्योंकि log a क्या होगा, फिर log ऑफ 10 क्या होता है, बेस तो 10 है, तो log 10 इज 1, log 100 होता है 2, log 1000 होता है 3, राइट, तो अब इजीली कर सकते हैं उसको, a मतलब 10 रेस टू log b माइनस log c मतलब 2 माइनस 3 इंटू b मतलब 100 रेस टू log c माइनस log a 3 माइनस 1 c रेस टू log a माइनस log b मतलब 10 रेस टू 2 माइनस 3 माइनस 1 100 रेस टू 3 माइनस 1 स्क्वायर 1000
रेस टू 1 -2 मतलब -1। अब तो एकदम इजी है। ये रेस टू -1 को नीचे ले लेते हैं इंडाइसिस का रूल यूज करके। 100 स्क्वायर आता है 10,000 डिवाइडेड बाय, ये 10 नीचे आएगा, ये 1000 भी नीचे आएगा। देखो 1 इज द आंसर, राइट। ये लिटरली 10 to 20 सेकेंड्स में आ सकता है अगर आपने समझ लिया कि अज्यूम क्या करने हैं वैल्यूज। ऐसे लॉजिकली वैल्यूज अज्यूम करो जिससे आंसर फास्ट आ सकता है आपका, राइट। तो एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है तो, कि फास्ट कैसे करें। यू डोंट नीड टू शो योर कैलकुलेशंस टू एनीवन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो चेक इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड देन लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। अभी 65, 66, 67 थोड़े सिमिलर सिमिलर है। देखते हैं। 65, 1 upon log ABC to base AB plus 1 upon log ABC to base BC plus 1 upon log ABC to base CA। ऑलवेज रिमेंबर, लॉग के क्वेश्चंस में अगर डिफरेंट बेस आया तो फर्स्ट थिंग हमेशा यही करनी है, चेंज ऑफ बेस। बाकी कुछ भी नहीं करना है, चेंज ऑफ बेस ये फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए आपकी, क्योंकि विदाउट दैट हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो चेंज ऑफ बेस करता है। लेट्स फोकस ओनली ऑन फर्स्ट टर्म। जनरली जब ऐसे 3 सेम टर्म्स होते हैं ना, सिर्फ फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है और बाकी के टर्म्स उसके जैसे लिख लेने डायरेक्टली। फर्स्ट टर्म देखो, नीचे क्या है, लॉग एबीसी अपॉन लॉग एबीसी टू बेस एबी। वो उसका चेंज ऑफ बेस किया तो वैसे होने वाला है 1 अपॉन लॉग एबीसी अपॉन लॉग एबी, राइट। फाइन, उसमें से लॉग एबी ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, सो वी कैन टेक इट इन द न्यूमरेटर। सो दैट फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी लाइक दिस, देखो लॉग एबी अपॉन लॉग एबीसी। फिर सेकेंड टर्म करके मत देखो, वो दिख रहा है, देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो लिख लो लॉग बी सी अपॉन लॉग ए बी सी प्लस लॉग सी ए अपॉन लॉग ए बी सी। अब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। अब स्टेप नहीं लिखना है, कम से कम स्टेप लिखना है। देखो न्यूमरेटर्स को ऐड किया तो ऐसे आने वाला है, लॉग ए बी प्लस लॉग बी सी प्लस लॉग सी ए। लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मर्ज कर सकते हैं उनको। तो लॉग ऑफ क्या आएगा, 8ab इंटू बी सी इंटू सी ए अपॉन लॉग ए बी सी, कॉमन डिनोमिनेटर है उनका, ठीक है। ये देखते हैं अब क्या आता है। ए 2 बार मल्टीप्लाई हुआ मतलब आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लॉग ए बी सी। मतलब ही उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लॉग ऑफ ए बी सी का स्क्वायर अपॉन लॉग ए बी सी। अब तो इजी है, पावर पुल डाउन कर सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो 2 को पुल डाउन किया तो देखो लॉग एबीसी अपॉन लॉग एबीसी बच रहा है। तो आंसर इज जस्ट 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। चेक इफ यू अंडरस्टूड। जनरली थोड़ा सा ऐसे काम कम करने का ट्राई करो, जितना हो सके उतना कम काम करने का ट्राई करना है हमें। कम से कम लिखो, वो फर्स्ट टर्म करके देखो, फिर बाकी के टर्म्स वैसे ही लिख दो। सो बिकॉज वी डोंट हैव टू शो आवर कैलकुलेशंस एनीवेयर, राइट। सो फास्ट आंसर्स आने चाहिए। So if you have got this 2, let's go to 66th. 66 सेम है, मतलब चेंज ऑफ बेस वाला ही दिख रहा है, राइट। तो ट्राई कर सकते हो पहले आप, अगर नहीं किया था तो। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ही देखेंगे, फर्स्ट टर्म ही करके देखेंगे पहले, और वो जो आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड और थर्ड टर्म लिख लेंगे हम खुद से। कैसे देखो, फर्स्ट टर्म अब मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है वहां पे। 1 upon 1 plus log BC to base A। ओके, चलो उसका बेस पहले चेंज कर लेते हैं। 1 upon 1 plus log BC upon log A आ जाएगा। उसको एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 upon log A plus log BC upon log A, राइट। फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यू कैन सेंड इट टू न्यूमरेटर, that will become log A upon, now concentrate, log A plus log BC, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मर्ज होके, it will become log ABC, राइट। तो log A upon log ABC आ रहा है। अब लॉजिकली देखो, log A upon log ABC ऐसा आंसर आया है, मतलब यहाँ पे भी log B upon log ABC आंसर आने वाला है, और यहाँ पे भी log C upon log ABC आंसर आने वाला है, क्योंकि सेम ही टर्म्स है ना, वो सिमिलर ही है।
तो करके नहीं देखना है फिर उनको, फिर वो ऐसा आएगा log a अपॉन log abc प्लस log b अपॉन log abc प्लस log c अपॉन log abc। डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में आएगा log a प्लस log b प्लस log c। अब तो आंसर आया ही होगा आपका अपॉन log abc, वो ऊपर का भी log abc ही है मर्ज किया तो राइट, तो इट इज log abc अपॉन log abc, सो दैट इज 1। ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ ना लास्ट वाला, ऐसे अननेसेसरी स्टेप्स एग्जाम में मत लिखो, सो दैट वो भी टाइम सेव हो जाएगा ना आपका, 1-2-3 सेकेंड्स आर आल्सो प्रेशियस। तो ऐसे अननेसेसरी स्टेप्स मत लिखते जाओ एग्जाम में। आपको दिख रहा है वहां पे 1 आंसर आया तो 1 टिक कर दो, छोड़ दो उसको, आंसर लिखने का कोई कंपल्शन नहीं है ना यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं 67, वो भी चेंज ऑफ बेस ही है क्योंकि वहां पे बेस अलग दिख रहा है मतलब हमें, राइट। तो चलो चेंज ऑफ बेस करते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म को, सेकेंड थर्ड उसके जैसा लिख देंगे हम। 1 अपॉन log x टू बेस a बाई बी, ठीक है यहाँ पे करता हूँ उसको, नहीं नोट्स में ही करना अच्छा होगा। 1 अपॉन log x टू बेस a बाई बी, तो हो जाएगा 1 अपॉन log x अपॉन log a बाई बी, मतलब वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर लेके log a बाई बी अपॉन log x, ठीक है वैसे ही रखते हैं उसको। दूसरा पता है फिर हमें log b बाई सी अपॉन log x होने वाला है और log c बाई a अपॉन log x होने वाला है, सबका डिनोमिनेटर log x ही है तो न्यूमरेटर्स ऐड कर सकते हैं हम। न्यूमरेटर्स क्या है, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, न्यूमरेटर है log a बाई b प्लस log b बाई c प्लस log c बाई a। एक्चुअली आंसर समझ आया होगा आपको शायद से। फिर इनको मर्ज किया तो मल्टीप्लाई होने वाला है सब कुछ, तो कैसे होने वाला है देखो, a बाय b इंटू b बाय c इंटू c बाय a, ऐसे होने वाला है। ऊपर नीचे log x तो है ही, सब कैंसिल होता है और log 1 बचता है, log 1 इज 0 तो आंसर इज 0, राइट। तो 0 टिक कर सकते हैं। ऐसे सोचने का, फास्ट फास्ट सोचने का ट्राई करो, सी ये डेवलप तभी होगा अगर प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा। सो प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे सोचो कि हम एग्जाम में ही है, हमें एकदम फास्ट से क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना देखो, तो 120 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस, ये ऐसा नहीं है सच में। वो 120 मिनट्स में आपका नाम लिखने में 3-4 मिनट जाते हैं, वो सुपरवाइजर सिग्नेचर के लिए आता है तब 3-4 मिनट जाते हैं, वो मतलब वो सुपरवाइजर आपके यहाँ पे नहीं, वो सामने 2-3 बेंचेस पे जब आया होता है ना, तभी आप देखने लगते हो उसकी तरफ कि अच्छा वो आएंगे, अब मुझे पेपर देना पड़ेगा, तो रुकते हो। तो ऐसा मत करो, मतलब वो तो जाएगा टाइम, ठीक है मुझे पता है, वो 5 मिनट तो जाते ही है उसमें, तो डोंट कंसिडर 120 मिनट्स, मतलब 1.2 मिनट कंसिडर ही मत करो, खुद के लिए 1 मिनट कंसिडर करो, सो दैट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एंड में वो बोनस होगा आपके लिए। ठीक है चलो 68 का तो 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, log a upon log b, log b upon log c upon log a, everything will be cancelled, 1 is the answer. Fine. ये अब इसमें ये 1/2 को हम नीचे ले सकते हैं, 3 को नीचे ले सकते हैं, 2/3 को नीचे ले सकते हैं, तो जो नीचे आने वाले टर्म्स है उनको अलग से लिखता हूं मैं। 1/2 नीचे आने वाला है, 3 नीचे आने वाला है, 2/3 नीचे आने वाला है, और बचेगा क्या देखो, फिर बचेगा ये बचेगा जो ऊपर का ही क्वेश्चन है देखो, उसका बेस चेंज कर दो, log a अपॉन log b, log b अपॉन log c अपॉन log a, सब कैंसिल होके 1 रहेगा, तो यही आंसर आने वाला है। मतलब हमारा क्या हो रहा है, 2 2 3 3 1, स्टिल 1 इज द आंसर। ऐसे कम से कम लिख के करने का ट्राई करो प्रेफर। ओके अब 70 हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा देखा ना उसको 70 को, दैट 70 इज नथिंग बट क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन 64 ही है देखो। क्वेश्चन 64 क्या था देखो, a रेस टू log b माइनस log c था, यहाँ पे क्या है a रेस टू log b बाय c, लेकिन हमें पता है वो प्रॉपर्टी जिससे वो ऐसे ही होने वाला है बाद में, log b माइनस log c, फिर वैसे ही होने वाला है b रेस टू log c माइनस log a, c रेस टू log a माइनस log b, विच इज नथिंग बट दैट क्वेश्चन ओनली। ओके वो क्वेश्चन 64 ही है, कोई अलग क्वेश्चन है ही नहीं वो, तो 64 का आंसर हमारा आया था 1, तो इसका भी आंसर क्या है, मतलब 1, सेम क्वेश्चन है ना वो।
71। अब 71 में भी ये उसके जैसा है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसमें भी जैसे मैंने लेंदी वे बोला कि एक्स लो और लॉग लो कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे। हमारे पास इजी वे है, ए बी सी के वैल्यूज अज्यूम करते हैं, ए का 10, बी का 100, सी का 1000। फिर उनके लॉग्स क्या आएंगे, इसका लॉग आएगा 1, इसका लॉग आएगा 2, इसका लॉग आएगा 3। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं, चलो आप रिमेंबर द वैल्यूज। बी इंटू सी 100 इंटू 1000, राइट, ठीक है, 100,000, नो प्रॉब्लम। रेस टू लॉग ऑफ बी बाय सी, मतलब लॉग ऑफ 100 बाय 1000। 100 बाय 1000 मतलब कितना आता है, 0.1 आता है, देखो 100 बाय 1000 करके, मतलब लॉग ऑफ 0.1 आएगा। लॉग ऑफ 0.1 इज, ठीक है, वो आपको नहीं पता होगा तो बोलता हूं मैं, ठीक है, अभी तो वैसे लिखते हैं उसको, लॉग ऑफ 0.1 चलेगा। नेक्स्ट सी इंटू ए, सी इंटू ए क्या है, 1000 इंटू 10, 10,000। रेस टू लॉग ऑफ सी बाय ए, 1000 बाय 10 इज 100, तो लॉग 100, लॉग 100 2 होता है, ठीक है। ए इंटू बी 10 इंटू 100 मतलब 1000, रेस टू लॉग ऑफ ए बाय बी मतलब 10 बाय 100, 10 बाय 100 भी 0.1 आता है। चलो अब देखते हैं इसको। सी इंटू ए रेस टू क्या था, सी बाय ए, करेक्ट। देखो अब log 0.1 क्या होता है, समझ लो ठीक से। log 0.1 मतलब क्या, 10 रेस टू व्हाट इज 0.1, लेकिन 0 पॉइंट मतलब 1 मतलब तो 1 बाय 10 होता है ना, तो वो 10 रेस टू -1 हो जाएगा, मतलब ये आंसर -1 होने वाला है। तो उसको रेस टू -1 कर देते हैं, यहाँ पे रेस टू -1 लिखता हूँ, या log 100 इज 2 तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर ये भी -1 होने वाला है, तो -1 वाले नीचे चले जाएंगे। ठीक है, 10,000 का स्क्वायर, वो कैलकुलेटर भी करने की जरूरत नहीं है, वो जीरोस जितने हैं ना वो डबल हो जाएंगे, 4 जीरोस है तो 8 जीरोस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 लाख एंड 1000। टोटल जीरो सेम ही आ रहा है, देखो 5 3 8, तो कैंसिल होके 1 ही बचने वाला है, तो आंसर इज स्टिल 1। ओके, तो लॉग लेने से मेथड एनी टाइम अच्छा है, फास्ट आंसर आएगा, समझ लो इसको ठीक से। If you have understood, then क्वेश्चन 72, 72 इजी है, आया होगा मोस्ट प्रोबेबली आपको, यही पे करते हैं। चलो 72, अपने वैसे सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना पॉसिबल है सोच के करने का ट्राई करो। देखो ये जो n है दोनों के, उनको ब्रैकेट रेस टू n लिख सकता हूं मैं, a अपॉन बी ब्रैकेट रेस टू n, और फिर वो n को पावर पुल डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो वो क्या होने वाला है अल्टीमेटली, n इंटू लॉग a अपॉन बी होने वाला है, लॉग a अपॉन बी, ठीक है, प्लस वो भी n आएगा इंटू लॉग b अपॉन सी, प्लस वो भी n आएगा इंटू लॉग c अपॉन a। तो n कॉमन लेते हैं और फिर सब लॉग्स को ऐड कर देते हैं, लॉग a अपॉन बी प्लस लॉग b अपॉन सी प्लस लॉग c अपॉन a, ठीक है। फिर n कॉमन लिया, छोड़ दो उसको, ये मल्टीप्लाई करते हैं लॉग्स कंबाइन करके, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, a बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय ए, मतलब सब कैंसिल होके बचता है log of 1, log 1 is 0, n into 0 is 0, answer is 0। ओके, कम से कम लिखना है, और ये ऐसे कम स्पेस भी यूज करना है आपको, आइडियली ज्यादा स्पेस भी मत यूज करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड एटलीस्ट ट्राइंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, 73, 73 भी मोस्ट प्रोबेबली आया होगा आपको, सिंपल है, क्या सब मल्टीप्लाई होने वाला है, राइट, ये और ये मल्टीप्लाई होने वाला है, करते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर है और नीचे 2 ए है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर नीचे के 2 बी गए, सी स्क्वायर और नीचे के 2 सी गए, मतलब 1 बचने वाला है, log 1, log 1 is 0, check whether you have got 0। ठीक है, 74,
log of a raised to 9 plus log of a is equal to 10, then if value of a is given by, ठीक है, एक तो 9 को पुल डाउन करता है तो वो आएगा 9 log a प्लस log a इज इक्वल टू 10। अब 9 log a प्लस log a मतलब 10 log a हो गए ना, 10 log a इज इक्वल टू 10, फिर 10 10 कैंसिल करके log a इज इक्वल टू 1 एंड log of what इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बेस 10 होने वाला है ना, 10 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू a, तो a क्या आया, 10 आएगा। देखो इंडाइसेस में रीअरेंज कर लो उसको। 10 raised to 1 will be a, so a will be 10, 10. Okay. ठीक है, फिर अब ये 75 से आगे जो थोड़े से क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, बट स्टिल आपको पता है कि क्या करना है तो नहीं लगेगा। देखो, if log a upon y minus z is equal to log b upon z minus x is equal to log c upon x minus y, then value of a b c is what? Remember one thing, जहां पे से something equal to something मतलब दो equal to साइंस आते हैं ना, वहां पे most of the times you can get answer by assuming everything as k। अब सबको k assume करते हैं तो इसका मतलब देखो this is equal to k, तो रीअरेंज किया तो कहना है से log a क्या हो जाएगा, y माइनस जेड उस साइड को लेते हैं, वो हो जाएगा k इंटू वाई माइनस जेड मतलब ky माइनस के जेड। फिर log b क्या हो जाएगा, वो भी k ही है ना, तो वो हो जाएगा के जेड माइनस के एक्स, एंड log c हो जाएगा के एक्स माइनस के वाई। फाइन, क्यों किया हमने, क्योंकि हमें a इंटू बी इंटू सी चाहिए था। अब a इंटू बी इंटू सी कहां से आएगा, यहाँ पे तो log a log b log c है, लेकिन log की प्रॉपर्टी पता है ना, अगर हमने तीनों को ऐड कर दिया तो एक log के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो log a प्लस log b प्लस log c किया तो हमें मिल जाएगा log abc, तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा तीनों को ऐड किया तो देखो ky पॉजिटिव ky निगेटिव माइनस के एक्स प्लस के एक्स माइनस के जेड प्लस के जेड, जीरो बचेगा, एंड log ऑफ abc इज जीरो, बट log ऑफ व्हाट इज जीरो, किसका log जीरो होता है हमें पता है, log ऑफ 1 इज जीरो, राइट, log ऑफ 1 इज जीरो, तो आंसर आएगा 1। आई होप दिस इज क्लियर। जहां पे दो इक्वल टू साइंस दिखे ऑलवेज रिमेंबर के अज्यूम करना है, दैट गिव्स अस द फास्टेस्ट आंसर जनरल। 76 also we can try then. So, again if we assume k, then we know that log a is equal to ky minus kz, log b is equal to kz minus kx, log c is equal to kx minus ky। अब हमें चाहिए कुछ तो अलग ही चाहिए, a रेज टू y प्लस z, b रेज टू z प्लस x, c रेज टू x प्लस y ऐसे चाहिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं उसके लिए, कैन यू थिंक अ बिट, क्या कर सकते हैं उसके लिए? ओके सी, a का पावर यहाँ पे y प्लस जेड है, y प्लस जेड को एक पावर में लाना है तो हम एक ट्रिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा उससे, वो y प्लस जेड ऊपर चला जाएगा और वो टर्म ऐसे हो जाएगा log ऑफ a रेज टू y प्लस जेड हो जाएगा इज इक्वल टू, ये उससे k कॉमन निकाल लेता हूँ, k को k जो है ना ये उसको बाहर लिखता हूँ तो आएगा y माइनस जेड y प्लस जेड, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कैन राइट इट एज k अलग से लिख के y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, करेक्ट। तो बाकी का सोचो भी मत, डायरेक्टली लिख दो। देखो z प्लस एक्स है, यहाँ पे z माइनस एक्स है, तो वो आएगा log b रेज टू z प्लस एक्स इज इक्वल टू k इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, log c रेज टू x प्लस y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सोचना भी नहीं उसके बारे में क्योंकि वो ऐसे ही आने वाला है ना, सिमिलर तो है। अब तीनों को ऐड कर दिया, अब ये प्लस ये किया
तो log के अंदर वो आ जाएगा log ऑफ दिस, ये पार्ट इज इक्वल टू, इनको भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते हैं। अब देखो k कॉमन निकाल के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जीरो बचने वाला है। log of what is zero? log of 1 is zero. The answer is 1. Same again. तो आंसर शुड बी 1। ऐसे फास्ट फास्ट सोचने की आदत हो जाएगी आपको इफ यू प्रैक्टिस मोर, कि तो प्रैक्टिस करते रहो। चलो ये ट्राई करते हैं। 77. If log a is equal to half log b is equal to 1/5 log c, then value of a raised to 4, b raised to 3, c raised to minus 2 is। अब यहाँ पे भी k अज्यूम कर सकते हैं, चलेगा। और भी एक वे है, लेकिन सोच सकते हो क्या? देखो चलेगा, k अज्यूम किया तो भी चलेगा। k अज्यूम करके देखते हैं पहले। सबको k अज्यूम किया तो इसका मतलब log a इज इक्वल टू k, हाफ log b इज इक्वल टू k, हाफ log b इज इक्वल टू k। उसको ही थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं 2 उस साइड को लेता हूं और ऐसे लिखता हूं log b इज इक्वल टू 2k, log b इज इक्वल टू 2k। एंड फिर log c इज इक्वल टू 5 के आ जाएगा, ये 5 उस साइड को जाएगा ना। फाइन, हमें जो चाहिए ना a के पावर में 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k हो जाएगा। क्या होगा उसके वजह से, देखो ये 4 ऊपर आ जाएगा और हमें मिलेगा log ऑफ a रेस टू 4 इज इक्वल टू 4k। फिर b को 3 से करते हैं तो log ऑफ b रेस टू 3 इज इक्वल टू 2k इंटू 3 मतलब 6k हो जाएगा। एंड c को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log ऑफ c रेस टू -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 किया तो -10k हो जाएगा। अब सबको ऐड कर देते हैं, log a रेस टू 4 प्लस log b क्यूब प्लस log c रेस टू -2, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log ऑफ a रेस टू 4 इंटू b रेस टू 3 इंटू c रेस टू -2 इज इक्वल टू, इनको भी ऐड करना पड़ेगा 4k प्लस 6k माइनस 10k, 0, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, तो ये 0 आ रहा है। अगेन log ऑफ व्हाट इज 0? log ऑफ 1 इज 0। सेम सिमिलर क्वेश्चन था, मतलब ऊपर के जैसा ना, जनरली 1 ही आ रहा है सब क्वेश्चंस का आंसर अभी तक तो। नेक्स्ट वाला मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, a raised to 4 minus bc पूछा है। Check whether I've understood this. If yes, then you can try the next one again. K assume किया तो try to visualize 1 by 2 into log a is equal to k हो जाएगा, तो 2 उस साइड को डालता है तो हमें पता है log a is equal to 2k मिल जाएगा हमें, log a is equal to 2k, ठीक है। log b is equal to 3k मिल जाएगा एंड log c is equal to 5k मिल जाएगा, चलेगा। a raised to 4 minus bc पूछा है। अब थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ना हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सब लॉग्स को ऐड करके फायदा नहीं है कुछ, राइट। तो थोड़ा अलग सोचते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे a रेस टू 4 किया भी तो चलेगा, यहाँ पे 8 क्या आएगा, लेकिन उसका क्या करेंगे ना आगे, उसका करेंगे क्या आगे, क्योंकि log ऑफ a रेस टू 4 माइनस bc करके तो नहीं आ सकता, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे बेस क्या है 10 है, इसको इंडाइसिस फॉर्म में लाते हैं, इंडाइसिस फॉर्म में लेके आते हैं उसको, क्या होगा 10 रेस टू 2k इज इक्वल टू a। चलो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10 रेस टू 2k इज इक्वल टू a, ऊपर का इरेज करता हूं थोड़ा सा, फॉरगेट अबाउट दिस, 10 रेस टू 2k इज इक्वल टू a। वैसे ही b को रीअरेंज करते हैं, यहाँ पे 10 है तो रीअरेंज किया तो क्या आएगा 10 रेस टू 3k इज इक्वल टू b एंड 10 रेस टू 5k इज इक्वल टू c। अब हमें जो पूछा है वो आ सकता है इजीली, क्योंकि a रेस टू 4 मतलब 10 रेस टू 2k रेस टू 4 माइनस b इंटू c मतलब 10 रेस टू 3k इंटू 10 रेस टू 5। देखो ये मल्टीप्लाई होगा 10 रेस टू
8k हो जाएगा माइनस ये पावर्स ऐड हो जाएंगे इंडाइसेस के रूल से 10�3k प्लस 5k मतलब 10�8k ही हो जाएगा तो आंसर शुड बी 0 चेक 10�8k से वही माइनस किया तो आंसर शुड बी 0 ऑप्शन ए check whether you have got it understood it so this was a good one सेवेंटी नाइन में बेस 2 है चलेगा बेस 2 का तो डज नॉट मैटर रूल्स तो अप्लाई होंगे देखते हैं चलो 79 अब आप भी ट्राई कर सकते हो 79 पहले अगर नहीं आया था तो अब ट्राई कर सकते हो शायद करो अदरवाइज लेट्स सॉल्व 79 if 1/4 log a to base 2 is equal to 1/6 log b to base 2 is equal to minus 1/24 log c to base 2 then what is a cube b square c a cube b square c ठीक है let's assume everything as k क्या होगा फिर this is equal to k मतलब log a to base 2 is equal to 4k हो जाएगा 4 उस साइड को जाके चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ log a to base 2 is equal to 4k no problem log b to base 2 क्या आएगा 6k आएगा ठीक है log b to base 2 is 6k log c to base 2 will be वो -24 को उस साइड को लेते हैं तो -24k हो जाएगा फिर log c to base 2 will be -24k ठीक है तो a क्यूब b स्क्वायर c अब वो हमारा वाला ट्रिक यूज करते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वो 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 4k को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12k हो जाएगा b स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर लेंगे और यहाँ पे 6 इंटू 2 12k हो जाएगा एंड c को वैसे ही रखते हैं अब तीनों को ऐड करके देखते हैं दिस प्लस दिस वो आएगा log ऑफ log a क्यूब प्लस log b स्क्वायर प्लस log c मतलब ही log ऑफ a क्यूब b स्क्वायर c टू द बेस 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू वो भी ऐड हो जाएगा 12k प्लस -24k ये तो 0 आने वाला है सो 2 रेज टू 0 इज इक्वल टू दिस 2 रेज टू 0 तो कितना आता है 1 log ऑफ 1 इज 0 सो आंसर आएगा 1 सिमिलर क्वेश्चन है ये सब हाँ क्वेश्चन बैंक में जनरली ऐसा है कि क्वेश्चंस आर ग्रुप टुगेदर सिमिलर वाले क्वेश्चंस लेट्स गो टू 80 80 अब आ सकता है क्योंकि 80 जैसे क्वेश्चन हमने ऊपर किए है देखो log ab टू बेस a ये हो जाएगा log ab अपॉन log a फिर log a ऊपर चला जाएगा तो वो होगा log a अपॉन log ab तो फिर दूसरा वाला होगा log b अपॉन log ab तो log a अपॉन log ab प्लस log b अपॉन log ab तो वो ऐड हो जाएंगे ऊपर log a प्लस log b हो जाएगा ऊपर दैट मीन्स log ab हो जाएगा ऊपर नीचे भी log ab ही है तो कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा राइट ट्राई टू विजुअलाइज रादर देन राइटिंग ऐसे क्वेश्चंस बोनस होते हैं क्योंकि फास्ट आंसर ला सकते हैं ना इसका तो ट्राई टू विजुअलाइज देखो कैंसिल होने वाला है 1 बचने वाला है log a प्लस log b आएगा ऊपर नीचे भी log ab ही है तो आंसर भी 1 81 शायद लिखना पड़ेगा देखते हैं वो भी एक तो हम दिख सकता है 1 अपॉन log t टू बेस a log t टू बेस b मतलब चेंज ऑफ बेस तो करना ही है तो चेंज ऑफ बेस पहले का किया तो क्या होगा log t अपॉन log a होगा और वो log a ऊपर चला जाएगा थिंक केयरफुली log t अपॉन log a होगा और वो log a ऊपर चला जाएगा मतलब वो log a अपॉन log t होने वाला है
वैसे ही दूसरा वाला log b अपॉन log t होने वाला है, तीसरा वाला log c अपॉन log t होने वाला है। तो लिखता हूं कहीं पे तो log a अपॉन log t प्लस log b अपॉन log t प्लस log c अपॉन log t इज इक्वल टू वो log t टू बेस z है, मतलब वो भी log z अपॉन log t होने वाला है। इन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ z। अब सिंपल है क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर देते हैं, log a प्लस log b प्लस log c मतलब हो जाएगा log abc, डिनोमिनेटर कॉमन है log t इज इक्वल टू log z अपॉन log t, log t कैंसिल हो जाएगा, फिर log निकाल देते दोनों का तो abc विल बी z। z ही पूछा था ना उन्होंने तो z का वैल्यू आया a इंटू बी इंटू सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। So z is equal to a into b into c. अब 82 अगेन वी विल नॉट सॉल्व क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। कहां पे देखते हैं 82 क्या है, इफ l इज इक्वल टू 1 प्लस log bc टू बेस a, m भी दिया है n भी दिया है और उन्होंने पूछा है 1 अपॉन l प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 किया है एंड में, मतलब इन अदर वर्ड्स वो पूछ रहा है 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस, और ये क्वेश्चन और माइनस 1 करना है एंड में, और ये क्वेश्चन ऊपर आया था ऑलरेडी, देखो कहीं पे तो देखो क्वेश्चन 66 सेम है, वही है क्वेश्चन 66, सिर्फ वैसे ही उन्होंने एल एम एन के फॉर्म में दिया है, वही है देखो 1 अपॉन 1 प्लस log bc टू बेस है, वही है वहां पे भी log bc टू बेस है, log ca टू बेस b, log ab टू बेस c, उसका आंसर 1 आया था और यहाँ पे एंड में -1 करने को बोल रहा है, तो 1 - 1 0 आंसर आएगा मतलब इसका, क्योंकि उसका आंसर देखो जाके क्या आया था, 1 आया था क्या, वो अगर 1 आया था आंसर, देखो क्या आया था 66 1 आया था, तो 1 - 1 मतलब इसका आंसर 0 आने वाला है फिर। ठीक है, अब 83 84 आर वेरी गुड क्वेश्चंस, 83 and 84 are good questions, let's read those। 83, if a is equal to b square is equal to c cube is equal to d raised to 4, then what is value of log abcd to base a, log abcd to base a, ठीक है, a is equal to b square is equal to c cube is equal to d raised to 4 ऐसे बोला है। what we can do is, can we write everything in terms of a, कैसे देखो कि बेस a है ना उसका, तो अब ओके कहीं और जगह पे लिखता हूँ, मैंने दिया है a is equal to b square is equal to c cube is equal to d raised to 4, तो सबको a के टर्म्स में लाते हैं, लाइक a is equal to b square, इसका मतलब b is equal to आएगा रूट a raised to हाफ, करेक्ट, a is equal to c cube भी है, इसका मतलब c आएगा a raised to 1/3 क्यूब रूट, a is equal to d raised to 4 भी है, तो d आएगा a raised to 1/4, तो उन्होंने पूछा क्या था, log ऑफ ABCD टू द बेस a, ऐसा पूछा था उन्होंने, तो करके देखते हैं, सबको रिप्लेस करते हैं, log ऑफ a के जगह पे a, b के जगह पे a रेस टू हाफ, c के जगह पे a रेस टू 1/3, d के जगह पे a रेस टू 1/4 टू द बेस a। अब इंडाइसेस के रूल से a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n, तो अंदर के पावर्स ऐड हो जाएंगे, देखो a रेस टू 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 टू द बेस a, फिर पावर पुल डाउन करते हैं, पावर पुल डाउन किया तो आएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 इनटू log a टू बेस a बचेगा, log a टू बेस a तो 1 होता है, तो आंसर इज 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसको सॉल्व मत करते बैठो क्योंकि ऑप्शंस में वो है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शंस इसलिए आपने देखने चाहिए पहले, अदरवाइज आप सॉल्व करोगे फिर रियलाइज होगा अरे यहाँ पे तो दिया ही था डायरेक्टली, हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर।
Let's try 84 then. Sum of the series log b to base a plus log b square to base a square plus log b cube to base a cube and so on up to log b raised to n to the base a raised to n. ठीक से लिखते हैं उसको, चलो. Plus up to log b raised to n to the base a raised to n. अब क्या कर सकते हैं, लेट्स थिंक. बेस तो अलग है तो उसको कुछ कर नहीं सकते अभी तो हम इमीडिएट. एक काम करते हैं, ये जो टर्म है ना सेकेंड वाला, उसका बेस चेंज करके देखते हैं. ऐसा आएगा क्या, देखो. log b स्क्वायर अपॉन log a स्क्वायर, राइट. फिर दोनों 2 को पुल डाउन करते हैं. ऐसा आएगा, देखो 2 log b अपॉन 2 log a. 2 कैंसिल होके log b अपॉन log a ही बच रहा है. तो चेंज ऑफ बेस का रूल रिवर्स करते हैं एंड उसको फिर ऐसे कर लेते हैं, log ऑफ b टू द बेस a. देखो करेक्ट है क्या, क्योंकि log b टू बेस a मतलब ही वही होता है ना, log b अपॉन log a. तो मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर चला गया, इन अदर वर्ड्स चला गया वो स्क्वायर स्क्वायर. वैसे क्यूब का भी करके देखो, वो क्यूब भी चला जाएगा, log ऑफ b क्यूब अपॉन log ऑफ a क्यूब. फिर वो 3 नीचे लेंगे, 3 log b अपॉन 3 log a. फिर ये कैंसिल करेंगे, log b अपॉन log a बचता है which is nothing but log b to base a. तो इसका मतलब पहला टर्म है log b to base a, दूसरा टर्म भी log b to base a, तीसरा टर्म भी log b to base a. इनफैक्ट सभी टर्म्स वही होने वाला है, log b to base a, log b to base a, राइट. क्योंकि ये 3 भी कैंसिल होगा, सही n भी कैंसिल होगा. तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, log b to base a प्लस log b to base a प्लस log b to base a ऐसे n टाइम्स, मतलब ही n टाइम्स ऑफ log b to base a. तो एक तो ये ऑप्शंस में क्या देखो, या फिर ये n ऊपर ले सकता है तो log b raised to n to base a, ये भी हो सकता है ऑप्शंस में शायद. a है, c दिख रहा है वैसे लेकिन c नहीं है, केयरफुली देखो उसको, a है उसका आंसर. So next let's go to question number 85. Okay, 85 में ना there's a printing mistake. Okay, एक तो ये b देखो ऐसे हुआ है प्रिंट, एंड प्लस शायद उनको वो a raised to log b to base a प्रिंट करना था, क्योंकि वैसे एक प्रॉपर्टी है हमारी, देखो a raised to log b to base a is b, ये हमें पता है. लेकिन a raised to log a to base b ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है. कुछ सिंप्लीफाई करना ही है तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ आंसर नहीं आता है. वो कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उनको कुछ तो अलग करना था प्रिंट, मे बी कहीं पे मिस्टेक हुआ. देखते हैं, 1 बाय a raised to log a to base b. चलो ट्राई करते हैं, log a to base b. अब क्या कर सकते हैं, कोई एनी थॉट्स. हमने वहां पे ना इसको x अज्यूम किया था, लेकिन वो करके अब चलेगा नहीं, मतलब फायदा ही नहीं हुआ उसको, क्योंकि log a to base b is equal to x हुआ, तो b raised to x is a. क्या करेंगे उसका ना, फिर चाहिए तो b is equal to a raised to 1 by x. 1 by x भी नहीं ला सकते कहीं से, तो इसका तो कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो आंसर नहीं है उसमें. ओके, देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक इन दैट. अगर चाहिए ही तो इसको x अज्यूम करके कुछ तो कर सकते हैं कि दोनों साइड्स का log लेंगे, ऐसे ही करके देखते हैं. जनरल a raised to log a to base b is equal to log x आएगा, फिर वो log a अपॉन log b के रूल यूज करके log 1 माइनस log a raised to log a to base b is equal to log x आएगा. log 1 is 0, तो निगेटिव मतलब 0 माइनस, ये पावर पुल डाउन करेंगे, log a to base b into log a. इसका भी बेस b ही लेते हैं, चलो सबको b के बेस से ही log लेते हैं, तो मे बी कुछ तो हो सकता है शायद.
ये भी log x to base b आएगा, लेकिन नहीं हो सकता इससे कुछ। अब क्या करेंगे अब ना, तो अब ये तो आएगा निगेटिव ऑफ log a to base b ब्रैकेट स्क्वायर is equal to log x to base b. Cannot do anything with this. ये पावर पुल डाउन नहीं होगा, वो सब पूरे लॉग का पावर है। तो there is some printing mistake in it, so I can skip it. Question 25. शायद log b to base से प्रिंट करना होगा, लेकिन फिर a by b भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, let's leave it for now. 86. Value of the following expression is given by, ठीक है, a raised to log b to base a, log c to base b, log d to base c, log t to base d. बेस अलग है, मतलब चेंज ऑफ बेस। फर्स्ट थिंग चेंज ऑफ बेस। चलो चेंज ऑफ बेस करके देखते हैं। a रेस टू log b टू बेस a मतलब हो जाएगा log b अपॉन log a, फिर log c अपॉन log b, फिर log d अपॉन log c, एंड फिर log t अपॉन log d। तो क्या बच रहा है, सिर्फ कैंसिल होके b b कैंसिल हुआ, c c कैंसिल हुआ, d d कैंसिल हुआ, a रेस टू log t अपॉन log a बच रहा है सिर्फ। देखो a रेस टू log t अपॉन log a, उसको चेंज ऑफ बेस का रिवर्स करके ऐसा लिखते हैं a रेस टू log t टू द बेस a। फिर अभी हमने ऊपर एक सेकंड पहले प्रॉपर्टी देखी, दिस इज t, राइट। a रेस टू log b टू बेस a इज b, तो b के जगह पे t लिखा है सिर्फ यहाँ पे, तो आंसर शुड बी टी, ऑप्शन ए। देखो एक बार समझाया गया, पहले तो सब कैंसिल किया, फिर जो दो लॉग्स बचे उनको मर्ज कर दिया, एंड देन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, अब नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 87. फॉर एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक के बाद एक आने वाले x y z, द इक्वेशन log 1 plus xz minus 2 log y is equal to 0 is ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स ट्रू, या कैनॉट बी डिटरमाइंड इन केसेस ऑफ वेरिएबल्स विद साइक्लिक ऑर्डर। ओके, वो डी ऑप्शन को कुछ मतलब नहीं है, ट्रू, फॉल्स या समटाइम्स ट्रू, ये हमें सब देखना है। अब हम यहाँ पे एक करके देख सकते थे कि एक्स वाई जेड की जगह पे शायद 2 3 4 रख के देख सकते थे हम, लेकिन द प्रॉब्लम इज समटाइम्स ट्रू ऐसा भी आ रहा है वहां पे। तो समटाइम्स ट्रू है तो हमें नहीं चलेगा ना, हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, फिर मतलब प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि वो हमेशा ट्रू आ रहा है क्या। ठीक है, अब देखो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब x y z ऐसे आने वाला है, तो मुझे बोलो कहने से x के जगह पे आई कैन राइट y माइनस 1 y एंड फिर y प्लस 1 z के जगह पे, क्योंकि वो कॉन्सिक्यूटिव है। तो ऊपर में से सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। चलो log ऑफ 1 प्लस एक्स जेड, x मतलब है हमारा y माइनस 1 y प्लस 1 माइनस 2 log y, वो 2 को ऊपर लेते हैं तो log ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा। वो जीरो है क्या, हमें प्रूफ करना होगा, देखते हैं। y का log ऑफ 1 प्लस y माइनस 1 y प्लस 1, a माइनस b a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस log ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा, तो क्या बचता है, देखो log ऑफ y स्क्वायर माइनस log ऑफ y स्क्वायर, ये तो जीरो ही आएगा क्योंकि log ऑफ y स्क्वायर से खुद को ही माइनस किया हमने। तो कहने से दिस इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू का क्वेश्चन ही नहीं आता फिर, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपलेस्ट वे ऐसा होता कि हम एक्स वाई जेड को 2 3 4 लेते, लेकिन ये समटाइम्स ट्रू ऑप्शन की वजह से वैसा नहीं कर सकते हम, हमें प्रूफ करके देखना पड़ेगा। क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली अगर वही आया ऑप्शन तो नहीं पता ना हमें, इसलिए। See if you have understood this. So then next is question 88. अब again 88, 89, 90 are very good questions, okay? बहुत ही अच्छे questions है।
इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑब्वियसली एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 1 मिनट में होता है, तो जो हो सके वो फास्ट करके बफर टाइम रखना है इसके जैसे क्वेश्चन के लिए। 88, 89, 90 आर वेरी गुड, ट्राई करते हैं। चलो 88। इफ log a plus b by 3 is equal to half into log a plus log b, देन उन्होंने वो पूछा है a by b plus b by a। ठीक है, एक तो उन्होंने जो पूछा है ना उसको पहले सिंप्लीफाई मतलब क्या, मर्ज कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे a इंटू बी, ए बी आएगा, मतलब ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसको वैसे ही रखते हैं, अब छोड़ दो उसको। अब लेट्स कम टू दिस, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई, मतलब इससे कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं। चलो, एक तो लॉग निकाल लिया कुछ तो करके, तो फायदा होगा कि यहाँ पे लॉग नहीं है ना, जो पूछा है उसमें तो लॉग नहीं है। तो log ऑफ a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है log ए बी, एंड ये जो हाफ है, ये हाफ यहाँ पे आने वाला है, वो उसके पावर में आ जाएगा, पावर उल्टा ऊपर लिया तो ए बी रेस टू हाफ आएगा। अब लॉग निकाल लेते दोनों साइड का, तो अब ये आएगा a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू ए बी रेस टू हाफ, मतलब रूट ए बी, राइट, रूट ए बी आ गया। ठीक है, इसका ही मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 3 रूट ए बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 रूट ए बी। ठीक है, अब इससे क्लोज देखो, ए बी तो एटलीस्ट दिख रहा है कुछ तो क्लोज, तो एक ऐसा ट्राई करते हैं कि मे भी दोनों साइड्स का स्क्वायर लेके देखते हैं, राइट, मे भी दोनों साइड्स का स्क्वायर लेके देखते हैं। चलो, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रूट ए बी का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट ए बी का स्क्वायर ए बी, ऐसे हो जाएगा। अब वो क्लोज दिख रहा है, बहुत ही क्लोज आया आंसर, देखो ये 2ab को उस साइड को लेके जाते हैं, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab माइनस 2ab, मतलब 7ab। अब फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है हमारे पास, उसको 7ab लिख देते हैं, तो मतलब हमें 7ab अपॉन ab, मतलब आंसर इज 7। ओके, एकदम सिंपली आ सकता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या किया हमने, पहले लॉग निकालने का ट्राई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग नहीं है ना, इसलिए हमने लॉग निकालने का ट्राई किया। फिर लॉग निकल गया तो हमने आइदर ऐसे ट्राई करना चाहिए कि कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है क्या, या फिर कहीं पे ए इंटू बी आता है क्या, ऐसे ट्राई करना चाहिए, सो दैट फिर वो कैंसिल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली वो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, उल्टा करके दिया है हमने, लेकिन ठीक है, सॉल्व करते हैं। 89, ये क्या आंसर इसका क्या आया, ऊपर का सी 7 आया ना, 7 आया। अब नेक्स्ट दिया है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 7ab, देन व्हाट इज log a प्लस बी बाई 3 माइनस log a बाई 2 माइनस log b बाई 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले हमेशा ना जो आपको पूछा है उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, सो दैट हमें सॉल्व करने में अच्छा, मतलब एक डायरेक्शन मिलता है कुछ तो, कि क्या करना है हमें एग्जैक्टली। तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कहीं पे इस यहाँ पे लिखता हूं मैं नोट्स में। हमें चाहिए क्या, log a प्लस बी बाई 3 माइनस log a बाई 2 माइनस log b बाई 2 माइनस log a बाई 2 माइनस log b बाई 2। ओके, एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, log a प्लस बी बाई 3, लेट्स टेक 1 बाई 2 कॉमन, माइनस 1 बाई 2 कॉमन लेते हैं, फिर अंदर आ जाएगा log a प्लस log b, फिर ये तो होता है log a b, तो ये हो जाएगा हाफ log a b, फिर वो हाफ को ऊपर ले लेते हैं, तो ये टर्म होने वाला है, मतलब log ऑफ a प्लस बी बाई 3 माइनस हाफ log ab, मतलब क्या, log ऑफ ab रेस टू हाफ, ab रेस टू हाफ मतलब ही रूट ab, ab रेस टू 1 बाई 2 मतलब ही रूट ab। ठीक है, अब हमें पता है log a माइनस log b इज log a अपॉन b, तो उसको कर लेते हैं, log a अपॉन b, वो नीचे आ जाएगा, मतलब हमें अल्टीमेटली ये फाइंड करना है, log ऑफ a प्लस बी अपॉन 3 रूट ab।
अब हम जो दिया है वहां से स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा ये प्रिंसिपल फॉलो करो बिकॉज दिस हेल्प्स। फिर आपके पास एक डायरेक्शन होता है कि कहाँ भी पहुंचना है हमें, अदरवाइज समझता ही नहीं कि पहुंचना कहाँ पे है हमें, राइट। तो पूछा क्या है, दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab ऐसा दिया है, उससे कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। अब यहाँ पे तो a प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो एक ऐसा कर सकते हैं, देखो ट्राई, इस साइड को मैं 2ab ऐड करता हूँ, इस साइड को भी 2ab ऐड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो वो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 9 का रूट 3 एंड ab का रूट ab। अब आया ये ना, आंसर ही आ गया, देखो लॉग ऑफ, वही है a प्लस बी मतलब ही 3 रूट ab है, 3 रूट ab अपॉन 3 रूट ab, मतलब log of 1, log of 1 is 0। इसीलिए हमेशा जो कुछ आपको फाइंड करना है उसको पहले सिंप्लीफाई करो और फिर जो दिया है उसको रीअरेंज करते जाओ टिल यू गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, दैट ऑलवेज हेल्प्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, सही क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो लास्ट 7 क्वेश्चंस बचे, 8 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 90 देखते हैं। If a cube plus b cube is equal to 0, then value of log a plus b minus half into log a plus log b plus log 3 is equal to what? Again, ये देखने से पहले इसको रीअरेंज कर लो, जो आपको फाइंड करना है उसको रीअरेंज कर लो। चलो कर लेते हैं, log a plus b minus log a plus b minus half into log a plus log b plus log 3। आई होप ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, ठीक है। इसको मर्ज कर लेते हैं, यह आएगा log ऑफ 3 इंटू ए इंटू बी, फिर ये हाफ जो बाहर रहेगा वो ऊपर जाएगा हाफ पावर में, मतलब वो रूट होगा, तो वो ऐसा होने वाला log ऑफ ए प्लस बी माइनस log ऑफ रूट 3ab। फिर log a माइनस log b यूज करके हमें ऐसा मिलेगा log ऑफ a प्लस बी अपॉन रूट 3ab, जो हमें फाइंड करना है। तो एक सिंपल फॉर्म में मिल गया ना, अब हम इजीली कर सकते हैं जो पूछा है उससे, log ऑफ a प्लस बी अपॉन रूट 3ab। ठीक है, दिया क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, हमें दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब से a प्लस बी अगर लाना है तो ऊपर के जैसा कुछ तो ट्राई करते हैं। मुझे बोलो व्हाट इज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, याद है फॉर्मूला, पास्कल ट्रायंगल से आते हैं ये फॉर्मूलाज, सो यू शुड स्टडी दैट। a प्लस ब्रैकेट क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। मतलब ये दो टर्म्स हमारे पास नहीं है सिर्फ, देखो, तो एक काम करते हैं, वो दो टर्म्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी ऐड करता हूँ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फिर क्या होगा उससे, ये जो है ना, ये a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब मिला फिर हमें, तो उसके जगह पे लेट्स राइट a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ देखो, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कैन वी टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड, 3, एक a और एक b, यहाँ पे एक a बचेगा प्लस एक b बचेगा, देखो। फिर ये a प्लस बी वाला ब्रैकेट नीचे ले लेते हैं, चलो यहाँ पे, तो वो आएगा a प्लस बी क्यूब अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 3ab। वो क्यूब है और नीचे पावर 1 है, मतलब वो स्क्वायर बनने वाला है, कैंसिल होके इज इक्वल टू 3ab। फिर दोनों साइड का रूट लिया तो a प्लस बी आएगा हमारा रूट 3ab, तो a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3ab। यहाँ पे देखो वही फाइंड करना था हमें, तो वो होगा लॉग ऑफ a प्लस बी मतलब भी रूट 3ab है और नीचे भी रूट 3ab है,
तो कैंसिल होके log of 1, again log of 1 is 0. 0 is the answer. Check whether you have understood it. So ऐसे ट्रिक फॉलो करो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में. इंडासिस में बहुत सारे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस. 91. If x is equal to log bc to base a, y is equal to log ca to base b, z is equal to log ab to base c, then value of x, y, z minus x minus y minus z is. What can we do? Any idea about what we can do in this case? Try to think. एक तो बेस अलग है, मतलब चेंज ऑफ बेस हम कर सकते हैं. चेंज ऑफ बेस किया तो क्या होगा देखते हैं. चेंज ऑफ बेस किया तो ये x आने वाला है log bc अपॉन log a, log ca अपॉन log b और log ab अपॉन log c. यहाँ पे लिखता हूँ, देखते क्या होता है. x आने वाला है log bc अपॉन log a, y आने वाला है log ca अपॉन log b, z आने वाला है log ab अपॉन log c. z आने वाला है log ab अपॉन log c शायद. और हमें पूछा है x y z माइनस x माइनस y माइनस z. अब ऐसे लगता तो है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखते हैं. x y z माइनस x माइनस y माइनस z, मतलब this into this माइनस this माइनस this. अब उनके डिनोमिनेटर्स नहीं सेम होने वाले हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड होने ही वाला है. इज देयर अ बेटर वे? क्योंकि बहुत ही बड़ा होगा वो, आपने कभी ट्राई किया है नहीं पहले. देखो log bc अपॉन log a इंटू log ca, मतलब x इंटू y इंटू z पहले करना पड़ेगा ना हमें. तो ये आएगा x इंटू y इंटू z माइनस x माइनस y माइनस z. एक तो डिनोमिनेटर भी अलग है उनके, तो छोड़ दो इसको. हमें चाहिए एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड. Let's assume ABC as something as usual, right? Let's assume ABC as something. देखो A को assume करते हैं 10, B को assume करते हैं 100, C को assume करते हैं 1000, क्योंकि उनका log लेना easy है. अब तो एकदम easy हो जाएगा. चलो x into y into z. अब ना x y z के वैल्यूज ही फाइंड करके रखते हैं. चलो x का वैल्यू क्या आएगा? Let me erase all this so that कर पाएंगे वहां पे. x का वैल्यू क्या आएगा? log b into c. b into c मतलब 100 into 1000 कितना होता है? 100 into 1000, 100,000 मतलब 1 लाख होगा, मतलब log of 1 लाख अपॉन log a मतलब log of 10. log of 1 लाख कितना होता है? 10 raised to what is 1 लाख. कितने जीरोस है वहां पे? देखो 5 जीरोस है, तो आएगा 5/1 मतलब 5. y क्या आएगा वैसे खुद से करो. 1000 into 10 मतलब log of 10,000 अपॉन log b मतलब log of 100. log 10,000 आएगा 4/2 मतलब आंसर आएगा 2. तो y 2 आ गया. z भी देखो a into b मतलब log of 1000 अपॉन log of 1000, ये तो 1 आएगा आंसर. तो x is 5, y is 2, z is 1. अब ये करना इजी है. 5 into 2 into 1 minus 5 minus 2 minus 1. Let's try. 10 minus 5 minus 2 minus 1 कितना आता है? एक ऑप्शंस में 2 आया. 10 minus 5 5 minus 2 minus 1 2 आता है ना आंसर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. तो सिंपलेस्ट वे हमेशा ऐसे बहुत बार हो सकता है, तो ट्राई टू थिंक लाइक दिस कि कहीं पे ऐसे नंबर्स अज्यूम करके कर सकते हैं क्या. दैट इज ऑलवेज बेटर. सो आई होप समझा ये. इफ यस देन लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. चलो 92 से लेके 97 तक बचे अब से. लेट्स सॉल्व देम. 92. On solving the equation log t
plus log t minus 3 is equal to 1, we get value of t as, ठीक है। अब एक तो log t plus log t minus 3 is equal to 1 मतलब ऐसे आना है log of t into t minus 3, ये 1 होगा, राइट। log a plus log b is equal to log ab, लेकिन हमें पता है किसका log 1 होता है, यहाँ पे बेस 10 है, मतलब कहने से ये भी 10 होगा, t into t minus 3 must be 10, क्योंकि log उसका 1 आ रहा है मतलब वो 10 होगा। अब वो 10 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व मत करो, गो बाय ऑप्शंस, ऑप्शंस पुट करो उसमें t के जगह पे, और देखो कौन से ऑप्शन से आंसर आता है 10, t इंटू टी माइनस 3, 5 इंटू 5 माइनस 3 करके ही आता है 10, देखो बाकी इससे आएगा ही नहीं, तो 5 इज द आंसर, ऑप्शन से जाना इज द बेस्ट, राइट। एक सेकंड में आंसर आया इसका, कुछ करना भी नहीं पड़ा हमें। तो ऑप्शन पुट किए तो दैट इज वेरी इजी। 93, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन log 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 t to the base 3 base 2 base 3 is equal to 1, we get value of t as, ठीक है, करना पड़ेगा, let me write it, log 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 3 2 3, अंदर से सॉल्व करते आना चाहिए बाहर से, देखो अंदर से कब आएंगे अगर ये हम सॉल्व कर सकते हैं तो, अब वो log t to base 3 तो हमें पता ही नहीं है ना, तो हम बाहर से आएंगे सॉल्व करते हैं। अब एक सेकेंड, तो ये बाहर का log पहले सॉल्व करते हैं, बाहर के log का बेस है 3, तो उसको इंडाइसिस में रीअरेंज किया तो ऐसे आने वाला है, मतलब 3 raised to 1 इज इक्वल टू वो बचा हुआ पार्ट log of t बेस 3 बेस 2, वापस बाहर का log सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, वो बाहर के log का बेस है 2, तो वापस वो ऐसे आएगा, देखो तो 2 raised to 3 इज इक्वल टू log t to base 3, 2 raised to 3 मतलब 8 होता है, ठीक है, तो वापस 3 raised to 8 इज इक्वल टू t, 3 raised to 8 तो कैलकुलेटर भी कर सकते हो, करो 6561 आता है, कैसे 3 into and equal to 7 times 6561, चेक है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन डी 6561। नाइन्टी फोर्थ भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, क्योंकि टी बेस में है तो थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है। लेट्स सॉल्व 94 ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन, वो भी मुझे दिखने दो पहले, log 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 32 40 half, इज इक्वल टू 2 बोला है उन्होंने, चलो फिर सिंप्लीफाई करते हैं उसको, अगेन बाहर के लॉग से आना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इंडाइसिस में रीअरेंज किया तो हाफ रेज टू 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट वाला पार्ट, तो हाफ रेज टू 2 मतलब 1/4 इज इक्वल टू वो ब्रैकेट वाला पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, log log 32 to base 4 to base t, वापस बाहर वाला ब्रैकेट, बाहर वाला log t raised to 1/4 इज इक्वल टू दिस, तो वो आएगा t raised to 1/4 is equal to log of 32 to the base 4, log 32 to the base 4। अब उसको और कर सकते हो, 4 raised to t raised to 1/4 is equal to 32, लेकिन उससे एक थोड़ा सिंपल वे ऐसा हो सकता है, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो log of 32 can be written as 2 raised to 5 to the base 4 is equal to t raised to 1/4, फिर वो 5 को नीचे लेते हैं, 5 log 2 to base 4 is equal to t raised to 1/4, अब log 2 to base 4 मतलब क्या, 4 raised to what, 4 raised to what is 2, 4 raised to what is 2, कहने से 4 raised to half is 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है ना 2, तो वो log आने वाला है, ये आने वाला है हाफ, तो ये आएगा 5 into half is equal to t raised to 1/4, इसका मतलब 5/2
इज इक्वल टू टी रेस टू 1/4। अब दोनों साइड को 4 से रेस कर देंगे। अरे इसको 4 से रेस करेंगे, इसको भी 4 से रेस करेंगे, सो दैट 1/4 और 4 कैंसिल होगा, टी बचेगा सिर्फ। 5 रेस टू 4 आता है 625, 2 रेस टू 4 आता है 16, तो टी शुड बी 625 अपॉन 16। चेक करो, टी शुड बी 625 अपॉन 16। चेक इफ यू वांट। चाहिए तो उसको और भी रीअरेंज कर सकते हो लॉग को, आंसर सेम ही आएगा एंड में। तो है क्या ऑप्शंस में? ऑप्शन सी है, देखो 625 अपॉन 16। ठीक है, चलो लास्ट 3 क्वेश्चंस, 95, 96, 97। 95 इज इजी, वो लॉग का क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली, इंडाइस का। 4.8 रेस टू x इज इक्वल टू 0.48 रेस टू y इज इक्वल टू 1000। अब दो बार इक्वल टू साइन है तो k अज्यूम करना होता है, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू हमें दी है 1000, तो k तक जाएंगे ही नहीं। मुझे बोलो, कैन आई से 4.8 रेस टू x इज इक्वल टू 1000, वैसे ही 0.48 रेस टू y इज इक्वल टू 1000, दोनों भी 1000 है ना, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। इसका मतलब अब 1/x और 1/y चाहिए, तो हम दोनों साइड को 1/x से रेस कर सकते हैं। देखो 4.8 रेस टू x रेस टू 1/x, मतलब कैंसिल होके कुछ नहीं रहेगा वहां पे, और यहाँ पे आएगा 1000 रेस टू 1/x, एंड यहाँ पे आएगा 0.48 इज इक्वल टू 1000 रेस टू 1/y। ठीक है, अब हमें 1/x माइनस 1/y चाहिए, तो इंडाइसेस के रूल्स जो है वो याद करो, ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से डिवाइड करना चाहिए आइडियली। क्यों? देखो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हुआ तो होगा 4.8 अपॉन 0.48, राइट हैंड साइड डिवाइड हुआ, सॉरी राइट हैंड साइड डिवाइड हुआ तो होगा 1000 रेस टू 1/x अपॉन 1000 रेस टू 1/y। 4.8 अपॉन 0.48 कैलकुलेटर पे कर सकते हो आप, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, वो 10 आने वाला है। देखो इज इक्वल टू, कहने से ये आएगा इंडाइसेस के रूल्स यूज करके 1000 रेस टू 1/x माइनस 1/y। हमें 1/x माइनस 1/y चाहिए सिर्फ, ठीक है, लाते हैं, बेस सेम बनाते हैं उनका। 1000 को लेट्स राइट एज 10 क्यूब, लेट्स राइट 1000 एज 10 क्यूब। फिर 10 रेस टू 1 इज इक्वल टू 10 रेस टू 3 इंटू 1/x माइनस 1/y। बेस सेम है मतलब पावर सेम है, पावर सेम है इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/x प्लस 1/y, तो फिर 1/x प्लस 1/y आएगा 1/3। 1/3 है क्या ऑप्शंस में? यही है सी। देखो जब भी ऐसे दो दो इक्वल टू साइंस आते हैं ना, k अज्यूम करना है हमेशा। यहाँ पे k की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे 1000 था हमारे बेस के लिए। इंडाइसिस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देखो सब लोग, कंपलसरी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टू, 96 इज ओके, 97 लुक्स डेंजरस बट वो इजी है, 96 करते चलो। If x raised to 2a minus 3 into y raised to 2a is equal to x raised to 6 minus a into y raised to 5a, then value of a log x by y is, ठीक है, एक तो वहां पे x by y है सिर्फ, तो यहाँ पे x y को कुछ तो पहले सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। लेट मी राइट इट, x raised to 2a minus 3 y raised to 2a is equal to x raised to 6 minus a y raised to 5a। चलो सिंप्लीफाई करते हैं उसको, x को एक साथ लाते हैं, y को एक साथ लाते हैं, ये x वाला टर्म यहाँ पे डिवीजन में आया तो हो जाएगा x रेस टू 2a माइनस 3 अपॉन x रेस टू 6 माइनस a इज इक्वल टू y रेस टू 5a अपॉन y रेस टू 2a। इंडाइसेस के रूल यूज करके वो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, तो x रेस टू 2a माइनस 3 माइनस 6 माइनस a इज इक्वल टू y रेस टू 5a माइनस 2a। ठीक है, x रेस टू 2a माइनस 3 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू y रेस टू 3a। ठीक है, 2a प्लस a किया तो हो जाएगा 3a, x रेस टू 3a, माइनस 3 माइनस 6 किया तो हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू y रेस टू 3a।
हमें चाहिए क्या था, देखो a इंटू लॉग ऑफ एक्स बाय वाई चाहिए था हमें। अब log ऑफ x बाय वाई लेना है तो पहले x बाय वाई लाना पड़ेगा ना हमें कहीं पे, तो y को नीचे लेके आते हैं। चलो x रेस टू 3a माइनस 9 अपॉन y रेस टू 3a इज इक्वल टू 1 रहेगा वहां पे से। अब वो -9 वाला टर्म थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, इंडाइसिस का रूल उल्टा यूज करेंगे, ऐसा लिख देंगे उसको। देखो x रेस टू 3a माइनस 9 को स्प्लिट करके x रेस टू 3 अपॉन x रेस टू 9 कर देंगे, और फिर वो x रेस टू 9 को दूसरे साइड को भेज देते हैं। तो x रेस टू 3a अपॉन y रेस टू 3a इज इक्वल टू x रेस टू 9 हो जाएगा। क्यों किया, देखो अब इससे ना I can write it as x by y raised to 3a, फिर x by y ब्रैकेट रेस टू 3a लिख सकता हूँ फिर उसको, करेक्ट। एंड अब उसका log ले सकते हैं क्योंकि हमें log x by y चाहिए था ना। चलो देखते हैं, log of x by y raised to 3a is equal to log of x raised to 9। पावर्स को पुल डाउन करते हैं, 3a into log of x by y is equal to 9 into log of x। ये 3 को यहाँ पे नीचे लेते हैं तो ये 3 बन जाएगा। तो क्या बचा, a log x by y, यही हमें पूछा था, a log x by y इज इक्वल टू 3 log x या फिर log x क्यूब, पावर ऊपर लिया तो जो कुछ है ऑप्शन में देखते हैं क्या है। 3 log x है ही, ऑप्शन ए ही है। देखो 3 log x। तो जैसा मैंने बोला पहले भी, आपको क्या चाहिए वो पहले रीअरेंज करो, और फिर जो आपको दिया है उसको उससे वहां तक पहुंचने का ट्राई करो, टारगेट तक पहुंचने का। तो हमें ये चाहिए था ना, तो कुछ तो करके x बाय y लाने का ट्राई करना है, फिर हमें रीअरेंज करके। 3 log x will be the answer। If done then 97, last question, and this is a very good question। वैल्यू ऑफ n पूछा है। अब एक तो देखो n है पावर में, इसका मतलब एक चीज समझनी चाहिए। देखो जब भी ऐसा होता है ना, a रेस टू b इज इक्वल टू c, b पावर में है, तो फिर हमें b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, log लेना पड़ता है ना। log c टू बेस a आता है वो। इसका मतलब अगर n पावर में दिख रहा है तो इसका मतलब हमें कुछ तो करके log लेना पड़ेगा, जिससे n एक साइड को रहेगा, जैसे b रह रहा है यहाँ पे एक साइड। तो ठीक है, उसके लिए पावर्स कुछ तो कंबाइन करने पड़ेंगे, ट्राई करते हैं। e रेस टू माइनस n है, एक तो माइनस पावर दिखी आपको, निगेटिव पावर, तो इमीडिएटली समझना चाहिए इंडाइसिस का बेसिक रूल यूज कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं उसको, e रेस टू n माइनस 1 अपॉन e रेस टू n डिवाइड बाय e रेस टू n प्लस 1 अपॉन e रेस टू n। फिर एलसीएम लेते हैं, चलो ये मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, e रेस टू n इंटू e रेस टू n, e रेस टू n इंटू e रेस टू n मतलब e रेस टू n प्लस n हो जाएगा। तो e रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन, ये तो वैसे ही रहेगा e रेस टू n होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, e रेस टू 2n प्लस 1 अपॉन e रेस टू n हो जाएगा। फिर ये e रेस टू n कैंसिल करते हैं, तो हमारा x इतना बच रहा है, देखो e रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2n प्लस 1। अब थोड़ा नोट्स पे शिफ्ट होता हूं मैं, x इज इक्वल टू e रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2n प्लस 1। हमें कुछ तो करके n को पावर में लाना है, ऐसे एक पावर में। तो अब इसको यहाँ पे लेते हैं, चलो ये सब जगह x इंटू e रेस टू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू e रेस टू 2n माइनस 1। फिर लेट्स ओपन द ब्रैकेट, x e रेस टू 2n प्लस x इज इक्वल टू e रेस टू 2n माइनस 1। अब वो n वाले टर्म्स एक साथ लाने का ट्राई करते हैं, n वाले टर्म्स एक साथ लाते हैं। तो इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूं मैं, और ये x को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो क्या होगा, या फिर उल्टा करते हैं, वो निगेटिव चला जाएगा। इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। चलो तो ये x, ये माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेस टू 2n वैसा ही रहेगा, और ये टर्म वहां पे निगेटिव में चला जाएगा, x इंटू ई रेस टू 2n। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू 2n कॉमन ले सकते हैं हम,
ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स को नीचे डाल देते हैं तो आएगा x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, वहां पे रह रहा है e रेस टू 2n। अब आंसर आया ही हमारा एक्चुअली, एक स्टेप बचा है सिर्फ, n का वैल्यू निकालने के लिए हमें log लेना पड़ेगा। अब log कैसे लेंगे देखते हैं, ठीक से देखो। अब a रेस टू b इज इक्वल टू c है तो हम कैसे log लेते हैं, सोचो ठीक से। b एक साइड को आ जाता है इज इक्वल टू log ऑफ c हो जाता है, और ये इंडाइसिस का जो बेस है वो log का भी बेस रहता है। तो देखो यहाँ पे, इज इट लाइक दिस इज a रेस टू b इज इक्वल टू c, तो कैसे होगा, b एक साइड को आएगा मतलब 2n एक साइड को आएगा, log ऑफ वो राइट हैंड साइड आएगा, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड जो इंडाइसिस का बेस है वही log का बेस रहेगा e। तो फिर वो n चाहिए तो वो 2 को सिर्फ उस साइड को भेज दो, हाफ इंटू log ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस e। शायद वो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इस फॉर्म में दिया होगा वहां पे, देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो log of 1 plus x upon 1 minus x to the base e into half a, a ऑप्शन ए ही है, देखो log 1 plus x upon 1 minus x to the base e multiplied by half, तो ऑप्शन ए is the answer for this। Okay, so I hope doubts clear है, किसी को भी कुछ doubts है तो you can ask me still। कितने क्वेश्चंस थे, अराउंड 40 थे, 40 नहीं थे, 61 से स्टार्ट हो रहा था शायद, तो 37 वगैरह क्वेश्चंस थे। फाइन, सो दीज आर गुड क्वेश्चंस। लॉग एंड इंडाइसिस की क्वेश्चन बैंक स्पेशली अच्छी है। ओके, तो ट्राई करते रहो। अगर अभी भी कुछ डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी टाइम। अब एक लेक्चर हमारा अभी भी बाकी है लॉग का, जैसे मैंने कल बोला लॉग टेबल, तो लॉग टेबल वाला पार्ट लाइक आई सेड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी हम वो देखेंगे क्विकली कि कैसे करना है, क्या होता है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस टर्म्स का मतलब क्या होता है, लॉग टेबल पढ़ना कैसे है वो देखेंगे हम कल। इट इज नॉट दैट मतलब रिलेवेंट भी नहीं है प्रैक्टिकली, लॉग टेबल कोई यूज नहीं करता अभी, क्योंकि गूगल पे डाला तो भी लॉग का आंसर आता है, राइट, कैलकुलेटर में भी आता है। ठीक है, तो देन लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे, थैंक यू। ओके।